students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, Graphics and MS Word. Let's learn shapes and pictures, word art, spell check and thesaurus, and find and replace command. Word 2016 not only provides a facility to type and modify the text, but also offers to work with graphics too. There are two basic types of graphics, drawing objects and pictures. Drawing objects include shapes, diagrams, curves, lines, and text effects. Pictures include photographs, clip arts, and much more. Let's learn how you can use all these features. अच्छा देखिए, वर्ड 2016 में आप अपने टेक्स्ट को टाइप तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ मॉडिफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप ग्राफिक्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं. तो दो बेसिक टाइप ऑफ ग्राफिक्स हैं आपके यहाँ पे, जो है कि आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर्स. ओके, तो चलिए हम इन सभी फीचर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं जानते हैं. शेप्स. Word 2016 has a built-in set of ready-made shapes that you can use in your documents. The shapes is a group of ready-made shapes that include basic shapes such as rectangles and circles, plus a variety of lines and connectors, block arrows, flowchart symbols, stars and banners and callouts. Any shape available in the shapes can be easily drawn. Once drawn, the shapes can be resized, rotated, flipped, colored and combined to make them look more attractive. सो वर्ड 2016 में आपके बिल्ट इन सेट है जहाँ पे आपके पास रेडीमेड शेप्स हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं. तो शेप्स ये आपका ग्रुप है रेडीमेड शेप्स का, जिसमें आपके बेसिक शेप्स होते हैं लाइक रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स. इसके अलावा वैरायटी ऑफ लाइंस भी हैं, कनेक्टर्स भी हैं, ब्लॉक एरोज भी हैं, फ्लो चार्ट्स भी हैं, कॉल आउट्स भी हैं. सो कोई भी शेप आपके जो आपको चाहिए आपके वो शेप्स में अवेलेबल है, आप उन्हें ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं. और एक बार आपने शेप को ड्रॉ किया उसके बाद आप उसे रीसाइज, रोटेट, फ्लिप, कलर कर सकते हैं. ओके, ड्राइंग अ शेप. Shapes option in the illustrations group on the insert tab is used to draw different types of ready-made shapes. To draw a shape from the shapes, follow the steps given on next page. So shape option आपका आता है illustration group में, insert tab में. Okay, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं different types of ready-made shapes को draw करने के लिए. Step 1, click on the insert tab. Step 2, click on the shapes command in the illustrations group. A drop-down list appears with all the shapes that you can insert in your document. Step 3, select any shape from the available shapes. Step 4, drag the pointer in the document area to draw the selected shape and release the mouse button when the shape is of the desired size. Okay, so let's draw a shape. Okay, so सबसे पहले insert tab पे click करेंगे, फिर illustration group में जाएंगे और click करेंगे shapes command पे. अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में से देखिए आपके पास बहुत सारे शेप्स हैं, कोई भी आप यहाँ पे से शेप सिलेक्ट कर सकते हैं. अब आपको क्या करना है, पॉइंटर को हम ड्रैग करेंगे डॉक्यूमेंट एरिया पे टू ड्रॉ द सिलेक्टेड शेप एंड नाउ वी विल रिलीज इट. सी, हमारा ये जो शेप है वो ड्रॉ हो चुका है. नेक्स्ट, इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ शेप. यू कैन ऑल्सो इंसर्ट टेक्स्ट इन द शेप. टू डू सो फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1, राइट क्लिक इनसाइड द शेप. A submenu appears. Step 2, select add text option. The cursor will appear inside the shape. Step 3, type the text and then click anywhere on the screen outside the shape. The text appears in the shape. अब आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है शेप में, इंसर्ट करना है. तो सबसे पहले शेप में, शेप के इनसाइड आपने राइट क्लिक करना है. अब सब मेन्यू अपीयर हो गया है. यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन को. अब देखिए शेप के अंदर आपका कर्सर अपीयर हो गया है. अब आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं वट एवर यू वॉन्ट टू टाइप एंड देन हम शेप के बाहर क्लिक कर देंगे और इस तरह से आपका शेप के अंदर आपका टेक्स्ट अपीयर होगा. ओके, चेंजिंग आउटलाइन कलर एंड थिकनेस ऑफ अ शेप. फॉलो दीज स्टेप्स टू चेंज द कलर ऑफ द आउटलाइन ऑफ अ शेप. स्टेप 1, क्लिक ऑन द शेप टू सिलेक्ट इट. अ फॉर्मेट टैब अपीयर्स ऑन द रिबन. Step 2, click on the shape outline command. A drop-down menu appears. Step 3, choose the outline color and thickness from the drop-down menu. Okay, अब आपको outline का color change करना है, shape की thickness को change करना है. तो सबसे पहले shape पे click करेंगे उसको select करने के लिए. अब आपके देखिए format tab appear हो गया ribbon पे. Shape outline command पे click करेंगे. Now here menu appears. अब आउटलाइन कलर थिकनेस को हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चूज करेंगे. ओके,
Wrapping text around a graphic. Text wrap setting actually determines the relation between the text and the graphic. On inserting a graphic onto a page, the text appears in line by default. But if you want the text next to the picture, then text wrapping on the images needs to be changed. To do this, follow the various steps given below. अच्छा, टेक्स्ट रैप सेटिंग एक्चुअली क्या करती है, ये रिलेशन को डिटर्मिन करती है बिटवीन टेक्स्ट एंड ग्राफिक. तो जब भी आप इंसर्ट करते हैं ग्राफिक को पेज पे, तो टेक्स्ट आपका अपीयर होता है लाइन में बाय डिफॉल्ट. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के नेक्स्ट आए, देन टेक्स्ट रैपिंग ऑन द इमेज जो है उसको हमें चेंज करना पड़ता है. ओके, कैसे करेंगे? लेट्स फॉलो द स्टेप्स. Step 1. Click on the Image tab. Step 2. Select the Wrap Text option from the Arrange Group of Picture Format tab and choose any one of the options. सबसे पहले आप Image tab पे क्लिक करेंगे, फिर आपने Wrap Text ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं. ओके. Now pictures. Adding pictures to the document helps you illustrate the information in a better way. It also enhances the appearance of your document. Word allows you to add pictures from your computer or the web directly into your document. सोचिए अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड करें तो उसका अपीयरेंस इन्हांस हो जाएगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा अपीलिंग लगेगा. ओके, सो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं. आप अपने कंप्यूटर से भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली वेब से भी कर सकते हैं. ओके, एडिंग पिक्चर्स फ्रॉम द कंप्यूटर. टू ऐड पिक्चर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर, फॉलो द गिवन स्टेप्स. Step 1. Click on the Insert tab. Select the Pictures option from the Illustration group. A drop-down menu appears. Step 2. Click on the This Device option from the drop-down menu. The Insert Picture dialog box will appear. Step 3. Select the desired image. Step 4. Click on the Insert button. The picture gets inserted in your document. Okay, तो सबसे पहले आपने Insert tab पे क्लिक करना है, फिर आपने Illustration group से Picture option को select करना है. Now here appears the menu, drop-down menu. अब आपने ड्रॉप डाउन में से आपने चूज़ करना है दिस डिवाइस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. अब आपका इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया. यहाँ से आप इमेज जो भी आप चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके फिर इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे. अब देखिए आपकी पिक्चर जो है वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है. इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर्स. इन वर्ड 2016 यू कैन इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट. टू इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर्स, फॉलो दीज स्टेप्स. Step 1. Click on the Insert tab. Select the Pictures option from the Illustrations group. A drop-down menu appears. Step 2. Click on the Online Pictures option. Step 3. The Online Pictures dialog box appears. Type a word in Search Bing box. Step 4. Online Pictures dialog box appears. Select the picture you want to insert. Click on Insert One button. Okay. Now, अब आपको क्या करना है? ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करना है, तो अगैन आपने इंसर्ट ऐप पे क्लिक करेंगे, फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप से पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप चूज़ करेंगे ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन को. फिर ये डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो गया और आप देखिए सर्च बिंग बॉक्स में आप एक वर्ड टाइप करेंगे. ओके, एंड देन ऑनलाइन पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया. नाउ हियर सिलेक्ट द पिक्चर जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं एंड देन क्लिक करेंगे इंसर्ट वन बटन पे. ओके, resizing, rotating and moving a picture. We can click on a picture to select it. We see the resizing and rotation handles appear around it. You can resize the picture by dragging it from the resizing handles. To rotate a picture, you need to drag it from the rotation handles. To move a picture, bring the pointer over it. When the pointer changes shape, to move icons, drag the picture and drop it at a desired location. Step 1. Horizontal resizing handle, drag to change pictures width. Step 2. Vertical resizing handle, drag to change pictures height. Step 3. Corner resizing handle, drag to change both the width and the height of the picture at the same time. Step 4. Rotation handle, drag to rotate the picture. When we select a picture, the Picture Format tab under the Picture Tools appears on the ribbon. Clicking on the Picture Format tab displays several command buttons and options to format the picture. Okay. अब देखिए आप जैसे एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा. इसके बाद आपके पास आएगा रीसाइजिंग एंड रोटेशन हैंडल. आप पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं. सो आपको जस्ट ड्रैग करना पड़ेगा फ्रॉम द रीसाइजिंग हैंडल्स. रोटेट करने के लिए रोटेशन हैंडल्स को ड्रैग करना पड़ेगा. एंड इफ यू वांट टू मूव द पिक्चर देन पॉइंटर को आप लेकर आएंगे ओवर इट, और जब पॉइंटर चेंज हो जाएगा शेप में, टू मूव आइकन्स, तो आपने पिक्चर को ड्रैग करना है, डिजायर्ड लोकेशन पे ड्रॉप करना है.
हॉरिजॉन्टल रीसाइजिंग हैंडल से आप पिक्चर की विड्थ को चेंज करेंगे, वर्टिकल रीसाइजिंग हैंडल से आप पिक्चर की हाइट को चेंज करेंगे, एंड कॉर्नर रीसाइजिंग हैंडल से आप विड्थ हाइट दोनों को चेंज कर सकते हैं, एंड रोटेशन हैंडल से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। सो जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो जो पिक्चर फॉर्मेट टैब है ना अंडर द पिक्चर टूल से आपका अपीयर हो जाता है रिबन पे, एंड आप पिक्चर फॉर्मेट टैब पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपकी कमांड बटन्स और ऑप्शंस आपके पास डिस्प्ले होंगे जिससे आप पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, टेक फैक्ट, resizing means to change the size of a picture. To rotate the picture means to turn it to an angle in the clockwise or in the anti-clockwise direction. I'm sure आपको ये पता ही होगा, resize का मतलब होता है पिक्चर की साइज को चेंज करना, एंड रोटेशन का मतलब है कि पिक्चर को आपने रोटेट करना है either clockwise or anti-clockwise through an angle. Okay. Now word art. Word art is a text styling tool of MS Word that allows us to use special effects such as bending, twisting, shading, and rotating text in our document. The steps to insert the word art text in a document are as follows. Step 1. Click on the Insert tab. Step 2. Click on Word Art button in the text group. A list of word art styles will be displayed. Step 3. Click on any word art style. A text box will appear to follow you to type your word art text. Step 4. Type out your text and click anywhere outside the text box to finish. ओके, वर्ड आर्ट क्या होता है? देखिए ना, टेक्स्ट स्टाइलिंग टूल है MS वर्ड का, जिसमें आप स्पेशल इफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बेंडिंग, ट्विस्टिंग, शेपिंग एंड रोटेटिंग टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। सो किस तरह से आपने वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना है? सबसे पहले इंसर्ट ऐप पे क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट ग्रुप में जाके आपने वर्ड आर्ट बटन पे क्लिक करना है। अब लिस्ट आपके पास डिस्प्ले हो गई है, इसमें से आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए टेक्स्ट आपका अपीयर हो रहा है, यहाँ पे आप वर्ड आर्ट टेक्स्ट को टाइप करेंगे। नाउ अब आपने टाइप कर लिया है, नाउ क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, और देखिए आपका ये जो आपने स्टाइल चूज़ किया था ये उसमें आपका आ चुका है। ओके, resizing the word art document. We can resize the word art text by selecting it and then changing its font size from the font size button in the font group of the home tab. The steps to resize the word art text are as follows. Step 1. Select the word art text. Step 2. Open the home tab. Step 3. Click on the font size drop down arrow and select a bigger font size from the list. Step 4. Press the enter key. The size of the word art text will increase accordingly. So आप वर्ड आर्ट जो टेक्स्ट है आप उसको रीसाइज भी कर सकते हैं, आपको जस्ट उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप उसका फॉन्ट साइज बटन में जाके चेंज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए वर्ड आर्ट टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, देन होम टैब को ओपन करेंगे, फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बिगर फॉन्ट साइज जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड नाउ प्रेस द एंटर की। अब देखिए वर्ड आर्ट टेक्स्ट का जो साइज है वो आपका इंक्रीज हो गया है। ओके, स्पेल चेक. Word has a built-in dictionary and set of grammatical rules to check the spellings and grammar of the text document. Incorrectly spelled words are displayed with a single red wavy line under them. The grammatical errors are indicated with double blue lines. The spell checker starts from the position of the cursor and checks the complete document. A simple way to check the spelling of any word is as follows. अच्छा, तो वर्ड में ना एक बिल्ट इन डिक्शनरी है और कुछ सेट भी है ग्रामेटिकल रूल्स के, जिससे कि स्पेलिंग ग्रामर आपका चेक होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। सो अगर आपने गलत स्पेलिंग गलती से टाइप कर दिया तो आपकी रेड वेवी लाइन में डिस्प्ले होगा, जबकि जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो डबल ब्लू लाइन से इंडिकेट होती हैं। ओके, सो किस तरह से हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, देखते हैं स्टेप्स। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द वर्ड विद अ रेड वेवी लाइन. A shortcut menu will open with various suggestions. Step 2, click on the word with the correct spelling in the suggestions list. Step 3, the incorrect word will be replaced with the correct spelling in the document. अब देखिए क्या होता है कि आपने जो वर्ड रेड वेवी लाइन में आया ना उस पर राइट क्लिक करना है तो शॉर्टकट मेन्यू आपका ओपन हो गया। इसमें आपके बहुत सारे सजेशंस आपको मिलेंगे कि आप उनमें चूज़ करना पड़ेगा विच वन इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो उसको आप क्लिक करेंगे और जो इनकरेक्ट वर्ड है आपका रिप्लेस हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग के साथ जो आपने चूज़ किया। ओके, टेक टिप, यूज़ F7 की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है विच इज़ F7 की। ओके, थिसॉरस. Thesaurus allows us to view synonyms, words with similar meaning of a word. To use a thesaurus, follow the given steps. Step 1, select the word whose synonym is needed. Step 2, click on the review tab. Click on the thesaurus button in the proofing group. Step 3, the thesaurus pane appears on the right side of the screen. The selected word is displayed in the search for box.
Step 4. Select a word from the list displayed in the box and click on the drop down arrow. And Step 5. Click on insert to insert the word in the text. अच्छा, thesaurus में देखिए आप ना किसी भी वर्ड का आपको सिनोनिम मिल सकता है. सिनोनिम मीन्स सिमिलर मीनिंग जिन वर्ड का होता है. तो सबसे पहले तो देखिए वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है जिसका सिनोनिम आपको चाहिए. फिर रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे, फिर प्रूफिंग ग्रुप में जाएंगे और थिसॉरस बटन पे क्लिक करना है. अब आपका थिसॉरस पेन अपीयर हो गया राइट साइड में. अब ये जो वर्ड है ना, सिलेक्टेड वर्ड, ये आपके सर्च बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है. अब ये जो डिस्प्लेड वर्ड है इनमें से आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे. एंड नाउ आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन में और वर्ड आपका इंसर्ट, वर्ड में आपका टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा. ओके. टेक फैक्ट. Synonym is a word having the same or nearby the same meaning as another word of the same language. तो synonym का मतलब होता है कि वो word जिसका same meaning होता है या nearby same meaning होता है. Okay. Find and replace. Find and replace feature of MS Word is used to search and replace the words or text in a document. By using this feature, you can easily make changes in a very large document. Find. The find command of MS Word is used to find or search for a particular word or text in a document. To find text in a document, follow the given steps. Step 1. Click on the Home tab. Step 2. Click on the Find option in the editing group. The navigation pane appears on the left side of the Word document. Step 3. Type any word in the search box. The search word gets highlighted in the document. अच्छा देखिए, अब आपको क्या करना है, फाइंड कमांड का यूज़ करना है. इससे आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड आप सर्च या फाइंड कर सकते हैं या टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में. तो सबसे पहले होम टैब पे क्लिक करेंगे, फिर एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे और फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करना है. अच्छा, अब आप क्या करेंगे, कोई भी वर्ड सर्च बॉक्स में टाइप करें. अब देखिए सर्च वर्ड आपका हाईलाइट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में. ओके. Replace. The replace command of MS Word is used to replace a particular word or text with a new word or text in a document. To replace text in a document, follow the given steps. Step 1. Open the document in which you want to replace a word. Click on the Home tab. Step 2. Click on the Replace command in the editing group. The Find and Replace dialog box will appear. Step 3. In Find What box, type the text or word you want to search for. Step 4. In Replace with box, type the text to replace it with existing word. Click on the Replace button if you want to replace the current word only, or click on the Replace All button to replace all the occurrences of the searched word. Step 6. When all the replacements are made, the message given below Step 5 will be displayed on the screen. Click on OK. Step 7. Close the Find and Replace dialog box by clicking on Close button. ओके. अब आपको रिप्लेस करना है कोई पर्टिकुलर वर्ड या टेक्स्ट, नए वर्ड या टेक्स्ट के साथ. तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जिसमें आप वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं. फिर होम टैब पे क्लिक करना है. एडिटिंग ग्रुप में आपके पास है रिप्लेस कमांड, इस पर क्लिक करेंगे. फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा. फाइंड वर्ड बॉक्स में आपने टेक्स्ट और वर्ड को टाइप करना है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं, और रिप्लेस विद बॉक्स में आपने टेक्स्ट को टाइप करना है जिसे आप एग्जिस्टिंग वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं. फिर रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे अगर आप सिर्फ करेंट वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, और रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी अक्रेंसेस हैं सर्च वर्ड के वो सारे आपके रिप्लेस हो जाएंगे. ओके. अब आपके सारे रिप्लेसमेंट्स हो गए हैं तो आपका मैसेज आएगा आपका स्क्रीन पे, एंड देन हम क्लिक करेंगे ओके पे. इसके बाद इस फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे. टेक टिप. यूज़ कंट्रोल प्लस F फॉर फाइंड कमांड एंड कंट्रोल प्लस H फॉर रिप्लेस कमांड. अच्छा, आपके पास ना शॉर्टकट की भी है फाइंड कमांड और रिप्लेस कमांड के लिए. तो फाइंड कमांड के लिए कंट्रोल प्लस F और रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस H. ओके. क्विक रन थ्रू. Word art is a text styline tool of MS Word that allows us to use special effects. The spell check feature allows you to check the misspelled words in your document. Find and replace feature of MS Word is used to search and replace the words or text in a document. Thesaurus allows us to view synonyms of a word. So इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. Keep doing practice of this chapter.